Hello, Tanmay. Good afternoon. Hello, ma'am. Good afternoon. Yeah, congratulations, Tanmay. Yes, ma'am. Thank you. Tanmay, can you please briefly introduce yourself to me? Uh, yes, ma'am. I'm Tanmay. I'm from Patna, Bihar. I'm currently living in Surat. I've done my education till 12th from Patna, and then I did BTech in Chemical Engineering from IIT Kharagpur. And in my final year, I appeared for GATE exam. I secured 57th rank in that. Through that, I got placed in ONGC. I'm currently serving as an executive engineer production at Hazira Gas Processing Plant. Okay, all right, Tanmay. Tanmay, your DAF is very good. Like it has got some very interesting entries. All you'll have to do is just justify them very nicely. You Yes, know, ma'am. it's all about how you present yourself there. Okay, so that will do it. Otherwise, your DAF is very good. Tanmay, please tell me when is your mock schedule? So my interview is on 19th March, but I haven't scheduled any mock till now. I'm sorry, I was supposed to ask that only. When is your interview schedule? Okay, 19th so March. 19th March. So you have a lot of time. Still, I think you should start giving mocks by now. Yes, Yep. Okay, and then this is your first interview, right? Or you have yes. given interview? This is my First first. interview. Yes. Okay, all right, Tanmay. So Tanmay, in this session, we'll be talking about the basics of the UPSC CSE interview, and we'll be going through your DAF various entries. We'll try to explore the kind of questions that can be asked. Apart from that, if you have any doubt, please feel free to ask me. Okay. Okay. So Tanmay, see, when we talk about UPSC interview, the process is very different from the corporate sector or maybe any other job interview, because what happens is for any job, the domain is very, like, very unique. Domain specific questions ज़्यादा पूछे जाएंगे. They'll try to check your suitability for that particular sector. But when it comes to civil services, as an officer, you'll have to, throughout your life, you'll have to work in various departments at various positions, various hierarchical levels. So then when it comes to UPSC interview, the requirements are very different. It's all about mostly your personality and how you present yourself. Also, then when you are giving any answer, it comes down to the articulation of answer. If you are, clear and confident, they don't like if you are trying to guess something. If even if you don't know, you can clearly say that, sir, I'm sorry, sir, I don't know, and you can move ahead. Okay. And when we talk about the preparation of the interview, so there's no prescribed syllabus. Okay. So that's why we, tend to get overwhelmed by the kind of information we have and how to articulate it. So basically, the interview goes in broadly three lines. First is all about you, your education, job experience, the place you come from, all of that, which is your DAF. So they'll be asking 70% of interview mostly goes on the DAF. The second thing is current affairs. So you should be thorough with the current affairs near your uh, at least 2 months before your interview. So January, February, March, be thoroughly prepared about it. And third is some situation-based questions where they will try to check your temperament. Also, they can put you in a situation of conflicting interest and make you choose one. So there they want to see if how composed you are and your approach towards things. So that becomes important. So when we see your DAF, they can जो भी उनको पहले दिख जाए, they might be interested. For example, they can ask you कि what does तन्मय mean? तन्मय का मतलब क्या होता है? What does it signify to you? जो भी तन्मय का मतलब होता है, that relevant to your personality. They might ask something like this. Also, आपका जो birth date है and interview का date है, उसके around कुछ significant है. Any event or any person, if you share your birthday with someone significant, they might ask you about that person. So be prepared. Okay. Then very important, the place you come from. So your hometown is Patna, right? Yes, ma'am. So पटना के बारे में पूरा डिटेल पढ़ के जाना. The history of Patna, the various dynasties there. पटना कब establish हुआ, किसने establish किया, उसके पहले नाम क्या थे, पटना नाम कैसे आया, all of these things. Apart from that, the current situation, infrastructure of Patna, economic structure of Patna, वहाँ पे major economic activity क्या है, agriculture का status क्या है, industries का status क्या है. Since it's the capital, then उसके बारे में पूछ सकते हैं कि
being a capital, what is the status of infrastructure there? What are the issues of Patna? Economical, structural, infrastructural, then social issues of Patna. All of these things that can be asked. Also, the demographics of Patna, the literacy rate, gender ratio, enrollment, the status of healthcare, primary, secondary, tertiary, similarly education. So all of these, apart from that, law and order issues. तो ये सब आपको पटना के बारे में thoroughly पता होने चाहिए. इसके अलावा बिहार के बारे में, so Bihar, Bihar was earlier, a very prosperous state, and then it saw economic downfall. So what were the reasons for it? Then बिहार में बहुत ज्यादा out migration का issue है. So what are the reasons? Also how we can cater to it. So you can talk about various schemes in Bihar which, try to provide employment to the migrant workers so that they don't leave the state for employment. So these schemes you can talk about. देन द इट शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं. आर देयर बॉर्डर एनी बॉर्डर इश्यूज और एनी ऑफ दैट. देन द फ्लड, कोसी के वजह से जो फ्लड है, तो फ्लड मैनेजमेंट पे डिस्कशन जा सकता है. तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट कैन बी डिस्कस्ड अराउंड बिहार. देन हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स आर देयर, हाउ मेनी स्मार्ट सिटीज आर देयर इन बिहार, विच आर दोज. सो बी प्रिपेयर्ड अराउंड इट. Then your father is in agriculture, so you might be asked, ki, which crops do you grow? What are the issues related to those crops? Agriculture का status क्या है? What are the problems farmers face? Then farm laws क्या थे? उसके against protest क्यों हुए थे? So these things can be discussed. Then your mother is retired as टीचर. टीचर. सो फिर उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं कि बिहार में जो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, इट इज अमंग द लोएस्ट. सो व्हाई इज इट सो, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट ऑफ बिहार. देन टीचर्स के इश्यूज क्या है, टीचर ट्रेनिंग के इश्यूज क्या है, हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, डिजिटल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. दिस कैन बी डिस्कस्ड. Then you have done chemical engineering from IIT Kharagpur, so you might be asked about IIT Kharagpur, its legacy and history. Apart from that, chemical engineering का technical नहीं पूछेंगे, but since you are working also in the field, they might ask you about any current affairs going on regarding that field. The petroleum sector, all of that, self-sufficiency, then renewable resources, non-renewable resources, India's goals to reduce the, कन्वेंशनल रिसोर्सेस यूज एंड ऑल ऑफ दैट. तो उस फील्ड के अराउंड कुछ चल रहा है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं. नथिंग टेक्निकल अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग. ओके. फिर आपका जॉब, व्हाट इज योर रोल, योर जॉब प्रोफाइल, आपकी कंपनी ओएनजीसी का जो स्टेटस है एज पीएसयू एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है. या फिर अगर कुछ न्यूज में चल रहा है तो वो बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो don't skip reading news. Then you can be also asked about your experience of living in Surat and Mumbai. तो उसके बारे में, how is it different from Bihar? Now Gujarat and Bihar दोनों में this prohibition is the common thing. So your opinion on prohibition, then special economic zones, gift city, all of these things can be discussed. Okay. Then बिहार, पटना या बिहार में अगर कुछ the products having GI tag, especially in Patna, अगर वैसा कुछ है, what are the new different employment opportunities जिसका potential tap नहीं किया गया है, तो what can be done about it. Then कुछ tourism, is there any potential of tourism in Patna or around Patna, so that can be explored. Also, you will be definitely asked that you are in a very well-paying job. So why do you want to shift to civil services? What is your motivation? Since you have been working for a while, and then otherwise a simple question: why civil services? What if you become an IAS officer? What are the priority areas you would like to work on? Yeah, if you want to become like if you become an SP or IPS officer, then what are the things you want to work upon, या फिर कोई situation है, दंगे हो रहे हैं, law and order issues है, what will you do? Such questions might be asked. Then you have written merit cum means scholarship for academic performance. So what is the objective of these scholarships? Then such scholarships actually help students, or we should focus on improving the quality of education?
such questions can be asked. The National Safety Aptitude Certification. So what is the certification about? Mm. So basically, it is a test conducted by National Safety Council, which comes under Ministry of Labor and Employment. So this test is conducted in three different sectors: oil and gas, construction, or in general. Objective is to create awareness for safety and to provide safety certified people for industry. So that was Okay. So okay. यहाँ पे ना this is something that can attract a lot of questions and discussions around safety at workplace. So what are the laws regarding that? Does your workplace follow all those laws? Then labor laws जो labor codes आए थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना because there were some new 3 or 4 codes I guess. तो उसके बारे में पढ़ लेना. सो सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी तुमसे पूछेंगे प्रैक्टिकल मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स है. सो लेबर्स के लिए देन सोशल सिक्योरिटी पे जा सकता है लेबर्स के कि व्हाट आर द स्कीम्स रिलेटेड टू इट व्हाट वी नीड मोर और ज्यादा क्या कर सकते हैं ऑल ऑफ दैट. देन हॉकी इंटर हॉल टूर्नामेंट है IIT सर्व नेशनल सोशल सर्विस. ओके. सो हॉकी के बारे में एक तो टेक्निकल प्लस फील्ड दोनों कर लेना. टेक्निकल में फील्ड डायमेंशंस और सम टर्मिनोलॉजीज वेरियस पोजीशंस इन हॉकी तो व्हाट डू दे मीन वेयर डिड यू प्ले ऑल ऑफ इट दैट कैन बी आस्क्ड. और फील्ड के बारे में आएगा कि अभी अगर कोई टूर्नामेंट्स चल रहे हैं वेरियस टूर्नामेंट्स ऑफ हॉकी. Then why is hockey our national game? Do you think it should be called national game since cricket is more popular? तो ऐसे questions आ सकते हैं. Apart from that, you can be asked who is your favorite player. So try mentioning both a male and a female. Okay, favorite player में. Then why do you like them? Why is he or she your favorite player? What qualities a good team player should have or a good team leader should have. Okay, all of this. And NSS के बारे में फिर सब कुछ डिटेल में पढ़ना. When was it established? Under which ministry? What was the motto? What was the objectives? Which activities are conducted under NSS? How we can leverage the potential of NSS to solve the problems in the society. So all of these things can be asked. और ऊपर से आपने क्या क्या activities की? What were your learnings there? How will you apply those learnings in the administration? All of it. Uh, Captain of hockey. So, role of captain and qualities of captain, all of that. Then captain of ChemQuest, annual chemical case study competition. So you can be asked to talk about it. जितना आप बोलोगे ना उससे follow up questions आएंगे यहाँ पे. So you'll have to explain what is ChemQuest. And then case study competition means exactly what kind of case studies. And ऐसे case studies, like is it very academical or it has some on ground Technical. benefits, हाँ. all of that. तो इसमें आपको डिटेल में बात करनी है. यहाँ पे यू विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टॉक अ लाइन और टू. यू विल हैव टू एक्सप्लेन देम इन डिटेल. और आप जो बोलोगे ना जस्ट ट्राई टू see when you try to prepare an answer for any question, try to guess 1 or 2 follow up questions also कि इससे क्या और क्वेश्चन आ सकता है. Hmm. ओके. देन प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट. सो क्रिकेट के बारे में जैसे हॉकी का था वैसे सिमिलर लाइंस पे कि haven't you played cricket professionally or haven't you played hockey professionally? Won't you like to pursue it ever? All of that. Then why is the sports culture in India so poor? Means लोग as a career sports को लेने को क्यों कतराते हैं? These things can be asked. Then क्रिकेट के बारे में सिमिलरली हुज योर फेवरेट प्लेयर. और क्रिकेट के अभी जो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड. व्हाट कैन बी द रीजंस? तो यू विल हैव टू टॉक वेरी वेरी मतलब बहुत रॉ बातें करनी है वहां पे. एकेडमिक बातें नहीं करनी है इफ इट कम्स अबाउट दिस क्रिकेट एंड हॉकी. देन दे कैन आस्क यू कि अगर क्रिकेट एंड हॉकी में से चूज करना है तो विच वुड लाइक टू प्ले द मोस्ट. ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू डू. फिर क्वेश्चन जा सकता है हेल्थ पे कि what is Hmm. the importance of fitness. Many young people are dying of heart attacks Cardiac. or many chronic diseases. So what can we do to prevent them? Does strength training help there? Fitness का like strength training के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं to remain fit? Then it can come on diet, all of that. Hmm. Then you can be also asked to talk about Fit India program or Eat Right movement, all of it. In playing Sudoku, so see, Sudoku, how often do you play it? How Hmm. does it help you?
ओके, या उसके बारे में कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, एनीथिंग टेक्निकल रिलेटेड टू इट, बी थरो विथ। सुडोकू का लिटरल मीनिंग क्या होता है, हम्म, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ओके, then foreign service is your second preference, so they might ask you a lot of questions on current affairs related to international relations, be it be it the bilateral relations with neighboring countries, or अगर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी करंट में चल रहा है, बी इट मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब, जस्ट द करंट अफेयर्स, बी थरो विद इट। ऑल्सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कि विच कंट्री वुड यू लाइक टू सर्व इन as an IFS officer, or which are the foreign, what is the how do you see the evolution of India's foreign policy? Many a times we see that India does not take one particular stand in favor of one country. So how do you think this attitude of India, what are the basic principles, पंचशील and all of that, इस पे डिस्कशन हो सकता है। या फिर एज अ IFS ऑफिसर आप किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे, हम्म, these things can be asked. And similarly about IAS officer, कि आप किन मुद्दों पे काम करना चाहेंगे। Now you have worked in this, Surat and Mumbai, and as an IAS officer you can be posted in any small village also, rural area, तो would you be comfortable about it? So ऐसे questions आ सकते हैं। आपका ऑप्शनल कौन सा था? मैथमेटिक्स। मैथ्स से, तो मैथ्स से ऑब्वियसली टेक्निकल क्वेश्चंस तो दे डोंट वांट दैट, बट दे कैन आस्क समथिंग लाइक व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन मैथमेटिक्स, या फिर सम व्हाट वर द हु वर द मेजर मैथमेटिशियंस इंडियन, या फिर मैथमेटिक्स के अराउंड जो अवार्ड्स है, इंटरनेशनल अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स, वो पूछ सकते हैं, वो रिसेंटली किसको मिले हैं, क्यों मिले हैं। देन अगर कोई कंटेम्पररी मैथमेटिशियन न्यूज में है तो उस उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके। ओके, सो तन्मय, अब दिस वाज ऑल अबाउट योर डैफ। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट द इंटरव्यू। एक्चुअली मैम, लाइक लास्ट 7-8 डेज से मैंने बहुत सारे 1-to-1 दिए हैं। मतलब ओके, प्रॉपर पैनल नहीं, ओके, ऑनलाइन 1-to-1 टाइप। ठीक है। तो द मॉक्स, 1-to-1 मॉक्स, राइट? हाँ, 1-to-1 मॉक्स। सो ओके, अभी जस्ट आपके सेशन से जस्ट पहले एक बिहार कम्युनिटी का अपना एक ये रहता है, मॉक रहता है। सो उसमें आई थिंक एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, एंड एक आईएएस वो थे, राहुल श्रीवास्तव, जो कि आपके 1 साल सीनियर हो गए। तो वो 2 लोग थे। तो नॉर्मली मतलब मुझे इससे पहले भी मिला था कि कॉन्फिडेंस और लाओ, तो मुझे ऐसा लगा था कि कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ वॉइस है। ठीक है। फिर वही एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया है, मतलब मैं उनसे पूछ नहीं पाया था क्योंकि वो 3 के बाद वो तुरंत खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस किस टर्म्स में, क्योंकि एक तो वो, और दूसरा क्या था कि मैंने मतलब इन जनरल सजेशन था कि ब्रिविटी लाना रहता है आंसर में। तो मैक्स टू मैक्स 45 सेकेंड टू 1 मिनट तक रखो। तो अभी क्या था कि सर ने, मतलब जो सीनियर थे, उन्होंने एकदम पहले डिटेल से कुछ कुछ बड़ा सा बताया कि बिहार पहले ऐसे था वैसे था, अभी डाउनफॉल हो गया। तो तुम बताओ, मतलब मुझे, मतलब एंशियंट टाइम से लेके अभी तक बताओ। तो मैंने कट कट शॉर्ट करके आंसर 1 मिनट के अंदर लाया। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा एस्पेक्ट में हटा दिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ऑयल का, जियो पॉलिटिक्स का ऑयल के प्राइसेस पे क्या इफेक्ट, 50 ईयर्स के टाइम इंटरवल में उन्होंने पूछा। तो मैं बोलते जाऊंगा तब तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने भी कट कट शॉर्ट करके 1 मिनट में किया। लेकिन वो लोग इम्प्रेस नहीं हुए, वो बोले कि बहुत, मतलब वही रस लगा आंसर, कभी भी वो नहीं लगा। उनको चाहिए था पूरा डिटेल कंप्रिहेंसिव आंसर। तो एक तो कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जैक्टली किस चीज को कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। एंड दूसरा ये चीज को कि कितना ब्रेविटी रखना चाहिए किस क्वेश्चन में। मैंने तो कभी कभी ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि तुम एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, यस बोल के चुप हो जाओ, अगला वाला पूछेगा तब तुम एक्सप्लेन करना। अब नो इतने नो नो, कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस मिलते हैं, किसी को एकदम कंप्रहेंसिव चाहिए, किसी को बोलता है कि वन स्टॉप बोल के रुक जाओ। तो फिर वही थोड़ा कंफ्यूजन उसका हुआ, क्योंकि आर्टिकुलेशन अभी समझना ही पड़ रहा है। नहीं, कॉन्फिडेंस का इशू कैसे होता है ना, एक तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग द इंटरव्यू, और ये आपके मॉक्स भी फर्स्ट टाइम, ऊपर से देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन गिविंग मॉक्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऑफलाइन ही देना चाहिए, हाँ बहुत नहीं, मैं डिफरेंस होता है। मैं एक्चुअली 21 से 28 जनवरी दिल्ली जाऊंगा।
मैं प्लान ओके ऐसे किया हूँ कि 10 10 डेज जनवरी फेब में दिल्ली जाके ऑफलाइन मॉक दे दूंगा, और मार्च में मेरा है तब तो मैं थ्रू आउट अदर ही रहूंगा। सो ओके कम्बिनेशन टाइप से किया हूँ कि जब तक इधर हूँ ऑनलाइन दे दूँ, वहां जाके ऑफलाइन दे दूंगा। ओके। सो सी कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट, और कॉन्फिडेंस कब आता है ना, जब आप ना जब आपको ये पता रहता है कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। अब इसमें से पूछेंगे तो मैं दूंगा, इसमें इसके बाहर का पूछेंगे तो मैं हैंडल कर लूंगा, इससे कॉन्फिडेंस आता है। एंड जब आप देखिए मुझसे बात कर रहे हैं तो आई कैन फाइंड यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। बट अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, अंडर कॉन्फिडेंट कब लगता है, व्हेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू आर नॉट श्योर बट यू आर सेइंग। तो अगर आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें वो दिख सकता है कि समवन, समझ वो रहा हूँ। अगर मुझसे भी पूछे तो आई कैन ऑल्सो पैनिक अ बिट। ओके, तो वो आपका, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम भी है प्रिपेयर करने के लिए, तो आपका मॉक्स के थ्रू वो कॉन्फिडेंस का इशू सॉल्व हो जाएगा, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, जस्ट आपको थरोली प्रिपेयर्ड रहना है। और रही बात लेंथ की ना आंसर के, तो उनको एक सी यूपीएससी के इंटरव्यू में भी यही होता है कि दे वांट अ इन डेप्थ डिटेल्ड आंसर। ओके, देर आर सम क्वेश्चंस जैसे कि बिहार के इश्यूज बताइए, तो फिर आप बोलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है सर, आउट माइग्रेशन है जॉब्स के लिए, तो ये आप मुद्दों में बताओगे तो ये शॉर्ट में चाहिए आंसर। लेकिन फिर बिहार का डाउनफॉल क्यों हुआ, इसका तो आंसर एक डिटेल्ड आंसर ही होगा। तो कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इतना ही बोलना है, 20 सेकंड ही बोलना है या 1 मिनट ही बोलना है, ऐसे कुछ नहीं होता है। इट हम्म टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, और हम उतने समझदार होते हैं कि हमें समझ जाता है। अब जैसे कि एंशियंट टाइम से पूछा है तो वो ऑब्वियसली डिटेल में पूछेंगे ना। हम्म। तो दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन कि जहां वो हमें समझ जाता है कि इफ दे आर एक्सपेक्टिंग डिटेल, तो देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर अटेंशन स्पैन। आपने डिटेल में पूछा है, अब आप ध्यान दो, ऐसे हो जाता है। मैं समझ तो रहा डोंट हूँ। वरी अबाउट इट। और लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, तो वो तो 4 5 क्वालिटीज है, वो तो शॉर्ट में ही बतानी, वो एक्सप्लेन नहीं करनी है। हम्म ओके, तो और वहां पे भी ना मोस्टली ऐसे हो जाता है कि हाँ, हमें मॉक्स में आदत लग जाती है शॉर्ट में बोलने की, तो हम शॉर्ट में आंसर देते, फिर वो हमारी तरफ देखते रहते हैं कि और बोलो। हम्म। क्योंकि जहां वो सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, वो तुम्हें खुद चुप कर देते हैं कि हाँ बस बस विल आस्क समथिंग एल्स। सो एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में बिना मॉक्स को ज्यादा मतलब सोचते हुए, एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आंसर शेप अप कैसे करना चाहिए कि मतलब ऐसा डिटेल्ड आंसर दूं कि मतलब फील करे कि वो कि हाँ मतलब कवर अप कर दिया है, सो दैट। हाँ हाँ, डिटेल डिटेल, दे एक्सपेक्ट डिटेल आंसर्स। ओके, ये मतलब जो नॉर्मली मुझे वो रहता था कि थोड़ा कट डाउन करके क्विकली नो रैप। नो, सी कंसाइज आंसर देना हाँ, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम डिटेल्ड आंसर देना। कंसाइज मतलब क्या, कि तुम फालतू का एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं समझ रहा लेकिन हूँ। जो अगर मुद्दा बड़ा है तो बड़ा ही आंसर होगा, ऐसे। और एक और चीज, जो ये थोड़े से डिबेटेड टॉपिक होते हैं, जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज का हो गया, तो उसमें क्या है कि पूछते हैं कि व्हाट्स योर ओपिनियन। तो अभी क्या मेरा ओपिनियन थोड़ा मिक्स्ड अप हो जाता था, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बोलता था कि ये अच्छा भी है लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने ये देखा है कि वो लोग जनरली अप्रिसिएट कर रहे हैं कि तुम्हारे ओपिनियन में तुम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मत लाओ, सिर्फ अच्छी बातें करो, मतलब जो तुम्हें लगता है ठीक है, एंड बाद में मैं फॉलो अप करूंगा तब ये रहेगा। लेकिन मुझे वही लगता है कि कहीं उसी बेसिस पे वो जज ना कर ले कि यार तुमने मतलब ऑन पेपर थ्योरी वाले बंदे हो, ठीक है, तुम नहीं नहीं नहीं, ऐसे जज प्रैक्टिकल। नहीं करते। देखो उनको एक्चुअली ना, उनको इतना आइडिया रहता है कि ये बच्चे हैं, हम्म इतने बड़े मुद्दों पे इनके कोई फर्म ओपिनियंस नहीं हो सकते, उनको अच्छे से आइडिया रहता है। वो बस चाहते हैं कि तुम चुप ना बैठो वहां पे, तुम बात करो उसके बारे में। जैसे ओके। कि एक उसमें ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तन्मय, मोरालिटी, कि आप मोरालिटी नहीं छोड़ सकते कि सी इट सेम सेक्स मैरिजेस इंडिया में तो ऐसा है कि सी बाकी कंट्रीज में लीगलाइज्ड है, सो दे हैव देयर रीजंस, लेकिन इंडिया में क्या है, देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस, ठीक है, हम्म एंड लॉट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच मे बी आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। सो हम्म यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर देख सकते हैं कि सर राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट legalized it, or the ball is in the court of legislature, but हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मे बी फ्यूचर में देयर विल कम अ टाइम व्हेन इट विल बी टोटली एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। हम्म।
ऐसे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक एंड लाइक ओपन एंडेड रख दो फिर टॉपिक को, नहीं क्योंकि मैं वो तुमको मैं जज नहीं करेंगे उस पे। हाँ, मैं ना ये ऑप्टिमिस्टिक वाली चीजें सुनता था, और मैं नॉर्मली हर कुछ को ऑप्टिमिस्टिक करता था, मतलब नहीं, ये। हर कुछ को नहीं करना है, हर लेकिन कुछ को फिर नहीं। हाँ, फिर मुझे वो रियलाइज हुआ कि उसमें कितना बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन निगेटिव टोन में पूछते हैं, तो हम्म। एड्रेस पहले करना रहता है और लास्ट लाइन बस ऑप्टिमिस्टिक बोल दो। अगर अगर तुमको बोलना है तो मैक्स टू मैक्स। मेरा स्टार्ट ही होता था, अगर वो पूछते भी थे मतलब ऐसे मुझसे पूछा नहीं, ऐसे नॉर्मल डिस्कशन किसी और का देखा था मैं, तो उसमें था कि उसके डैफ में शायद फिल्म्स का लिखा होगा कि वॉयलेंस रिलेटेड फिल्म्स आजकल चल रही है, क्यों चल रही है, उस पे था। तो मतलब मैंने ये आंसर सोचा था कि बोलूंगा कि कुछ ऐसी चल रही होगी फिल्में, लेकिन मोस्टली कोई भी फिल्म चलने के ये कारण है, और मतलब क्या कहते हैं, गुड स्क्रिप्ट और ये वो, और नहीं, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते। अगर वही हाँ। मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ मोरालिटी की बात आती है ना, वहां पे बहुत क्लियर रहो कि वायलेंस गलत है तो गलत ही है। हाँ, तो नहीं मतलब वो शायद ये सुनना चाह रहे थे कि पहले तो एक्सेप्ट कर लो, हाँ चल रहा है, और ये हम्म। इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे, मतलब उसको पहले अगेंस्ट मत जाओ, डिफेंड करो, फिर लास्ट में बोल दो कि बट ऐसी भी और भी फिल्में हैं जो चल रही है। ठीक है, मैं पहला लाइन से ही पॉजिटिव टोन में चल लग गया था, तो हाँ। नहीं नहीं, जो ग्राउंड पे नेगेटिव चीजें चल रही है ना, उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ, बुलडोजर जस्टिस पे क्वेश्चन है, तो तुम हम्म, उसे जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, वो गलत ही है, इवन दो द समझ गवर्नमेंट रहे डूइंग। हाँ। तो हैं। उसे फिर नेगेटिव बोल सकते हो, दे दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। और ऐसे हम्म, दिमाग में नहीं रखना है कि यू हैव टू ऑलवेज सपोर्ट द गवर्नमेंट। मैं समझ रहा हूँ। हम्म। वो तो वो तो है। अ, या। बाकी मतलब मुझे एक ये रफ आइडिया लेना है कि टाइमलाइन क्या रखना चाहिए, जैसे 19 मार्च को है मुझे मेरा, तो एक रफ टाइमलाइन कैसे रखना चाहिए कि डैफ या ऑनलाइन मॉक या ऑफलाइन मॉक मैं दे पाऊँ, मतलब। मुझे ऐसा लगता है ना, मॉक्स बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देने चाहिए। मॉक शुड बी वंस अ वीक, वन मॉक पर वीक, इफ यू हैव टाइम टिल 19 मार्च। उससे होता क्या है, आपका मोमेंटम भी बना रहता है, एंड यू आर इवन एबल टू वर्क ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर इंटरव्यू। लगातार मॉक दोगे तो उसका कुछ प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आएगा। यू विल जस्ट बी सेटिस्फाइड कि मैंने मॉक दिया है, मतलब मेरी प्रैक्टिस हो गई। उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, सी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स, थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स का भी करते रहो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और क्योंकि इंटरव्यू का ना कभी कभी ओवर प्रिपरेशन हो जाता है ना, तो हमारे आंसर्स बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, कि हाँ, हमने जो और पढ़ा है उसमें से ही हम आंसर ढूंढने की कोशिश एक करते हैं, ऐसे हो एक जाता है। क्वेश्चन जो है कि वाई सिविल सर्विस वाला, उसके साथ यही होता है कि मतलब थोड़े मैकेनिकल लगने लगते हैं वो, हाँ। और उसको मैं अगर पर्सनल टच भी कुछ देना चाहता हूँ तो सोचना पड़ता है कि क्या पर्सनल टच दूं। तो फिर अभी तो मेरा कुछ आंसर ऐसा है कि मैं ओएनजीसी में काम किया, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मैंने देखा सोसाइटी में कैसे हो रहा है, एंड सिविल सर्विस मच लार्जर प्लेटफॉर्म दे रहा है, मच डाइवर्स स्केल दे रहा है, ग्राउंड लेवल से लेके पॉलिसी मेकिंग तक दे रहा है। तो इसी चीज को मैं मच लार्जर वे में ये कर पाऊंगा। लेकिन पता नहीं सामने वाले को थोड़ा एग्जैक्टली और क्या चाहिए, क्योंकि अभी सर उनको का चाहिए, ये देखो, उनको ये पता है कि यहाँ कोई सिर्फ सोशल सर्विस करने नहीं आया है, ओके। हाँ, उनको पता है कि सिविल सर्विस गिव्स अ वेरी गुड करियर, इसलिए तुम यहाँ आए हो। तो हाँ। पहले ऑनेस्टली उसके बारे में बोलो कि सर, इट इज अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी, एंड फिर बोलो कि इट गिव्स सच अ लार्जर प्लेटफॉर्म। पहले तो तुम्हारा काम भी इम्पैक्टफुल रहता है, दूसरा एज अ पर्सन यू ऑल्सो गेट टू लर्न सो मच। फॉर एग्जाम्पल, एज एन IAS ऑफिसर वर्क्स इन लाइक almost every department of the government, so you हम्म, get knowledge about each and everything जैसे गवर्नमेंट में चल रहा है। Also you are actually working in the system that runs the country, हम्म। तो उनको एक्सेप्ट करो वहां के तुम करियर के लिए आए हो। पहला लाइन मतलब थोड़ा सा एक्सेप्टेंस वाला होना ही चाहिए, हाँ ऐसे हाँ हाँ, नहीं कि 100%। हाँ, कि वो दिखे कि मतलब थोड़ा मैकेनिकल जा चुके हो तुम। हाँ। हाँ, ठीक है, मोर और लेस तो यही था। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट तन्मय। ओके।